سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، بہت سارے لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے گئے۔ اللہ ان کا حج مبرور فرمائے، قبول فرمائے۔ اور بہت سارے جو نہیں گئے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، بہت سارے موسٹلی اینڈ میجورٹی وہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا یا انڈرسٹینڈ کرنا یا ان کو ریکٹیفائی کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی تسلی کیا کریں کہ جو میں قربانی کر رہا ہوں وہ قبول و مقبول ہو۔ ہمیں اس بات کی تسلی کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بھئی کیسے ذمہ داری ہے؟ بھئی اس کی بہت ساری شرعی چیزیں ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہیں، اپنانی ہیں، یا قربانی کرتے وقت ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جو بھی جانور قربانی کے لیے لیا جائے اس کی ایج پوری ہو، اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہوں، نیت کی جائے کہ یہ کس کے نام کی قربانی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے نام کے، والد صاحب کے نام کی، والدہ صاحبہ کے نام، ان کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں کبھی ان کے نام کی، کبھی اپنے نام کی، کبھی اپنی وائف کے نام کی، کبھی بچوں میں سے کسی بھائی کے بہن کے نام کی۔ کوئی بات نہیں، آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میک شور کریں کہ آپ نیت کر کے جانور لیں کہ ہاں بھئی یہ میں فلاں کی قربانی کے لیے لے رہا ہوں۔ سستے کے چکر میں خراب جانور نہیں لے لینا۔ انڈیا پاکستان میں خاص طور سے یہ چیز کامن ہے۔ بارگین کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید بڑی اچھی ڈیل مل گئی، بعد میں پتہ چلتا ہے جانور میں کوئی کمی، کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، کوئی اس کی آنکھ خراب تھی، کوئی ٹانگ خراب تھی، کوئی کان خراب تھا، یا کچھ بھی۔ تو جو جانور ہم لیں اس کی تسلی کر لیں، نیت کر لیں، پھر اس کے بعد جب قربانی کے لیے کسی کو ذمہ داری دیں کہ ہاں بھی اس کو ذبح کرو، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے آپ خود ذبح کریں اپنے ہاتھوں سے۔ جو قربان کرتے وقت کی دعا ہے وہ یاد کریں، قربانی کرنے سے پہلے کی دعا، قربانی کرنے کے بعد کی دعا یاد کریں۔ کسی مولوی صاحب، کسی قاری صاحب، کسی امام صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ جی کیا شرعی طریقہ ہے، کون سی مسنون دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، اور پھر خود ذبح کریں پراپر تکبیر پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے۔ ہاں بھئی میں خود نہیں کر رہا، میں نے کسی سے یہ ہیلپ لی ہے کہ بھئی آپ میرے بہاف پر ذبح کریں، پھر نہ اس سے بھی کہیں کہ بھائی یہ تکبیر یاد کر لو، یا یہ تکبیر آپ کو آنی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیک ہوم ملکوں میں جو قصاب ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ان کو تکبیر بھی نہیں آتی۔ آپ ان کے منہ سے یہ تو سنیں گے بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب آگے کی اسے نہیں آتی۔
ये मेरा तजुर्बा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मेक श्योर कर लें कि उसे तकबीर आती हो, दुआएं आप खुद पढ़ लें चलें, और फिर अपना जानवर कुर्बान करें। जब जानवर कुर्बान कर लें तो उसके जो भी छोटे छोटे पीस बनाने हैं बना के हिस्सों में बांट लें। कभी एक हिस्सा गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक अपने लिए, तो हिस्से बना लें। फेवर्स ना करें। अक्सर होता है कि हम लोग फेवर्स बहुत करते हैं कि अच्छा भी ये लेग इधर भेज दो, ये चीज़ इधर भेज दो, तो फेवर ना करें, बल्कि उसको प्रॉपर बांट काट के मिक्स कर लें, फिर एक जैसा तकसीम करें। कुर्बानी सही तरीके से हो, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह जो लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे वो फैसिलिटीज मुयस्सर नहीं है कि आप जानवर लेके घर आएं, यहाँ पे नहीं होता। आप खुद उसको ज़िबा करें, नहीं आप घर में किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर सकते। किसी को बुला के उससे ज़िबा करा लें, नहीं आप नहीं करा सकते। इसके लिए प्रॉपर स्लॉटर हाउस जो हैं, जो जगह मुकर्रर हैं, लाइसेंस्ड हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल हैं। यूरोप का, अमेरिका, कनाडा का तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ यूके में, लंदन और लंदन के गिरदो नवा, खास तौर से नॉर्थ का जो इलाका है, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड का, यहाँ पे ऐसे स्लॉटर हाउस मौजूद हैं जहां आप खुद जाके अपना जानवर चूज करके कौन सा जानवर खरीदना है, अपने सामने ज़िबा करा के गोश्त बनवा के उसका लेके आ जाए। यस, यहाँ पे अब ये फैसिलिटी मौजूद है। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी कुर्बानी को अहसन तरीके से सरअंजाम दें। जो लोग यहाँ पे, ऐसा भी होता है, यूके की बात कर रहा हूँ, कनाडा में भी शायद ऐसा होता होगा, जो लोग कुर्बानी करते हैं और जो यहाँ पे बुचर शॉप्स हैं, मीट शॉप्स हैं, उनको पैसे दे देते हैं कि भाई मेरे नाम की एक कुर्बानी बुक कर ले। डाउटेड है, बस थोड़ा ज़रा ख्याल किया करें, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन डाउटेड है कि वो कोई ना कोई सुस्ती कोताही कर जाते हैं। कैसे? भई मेरे पास कुछ पुरानी भेड़ें पड़ी हुई थी, मैंने वही काट के दे दी, ये कह के कि जी आपके नाम की कुर्बानी हो गई। अफ़सोस। चलें 100% नहीं तो कोई 1% ऐसे भी करते होंगे। दूसरी बात, उन्होंने आपके नाम की कुर्बानी करा दी, 10 कुर्बानियाँ हुई, किसी की कुर्बानी का गोश्त किसी को दे दिया, किसी की कुर्बानी का गोश्त किसी और को थमा दिया। पता ही नहीं कौन सा जानवर, कौन सा दुम्बा, भेड़, गाय किसकी है। तो ये भी ख्याल करें। एक और बात, जो उस कुर्बानी के जानवर की खाल है, सिरी पाए हैं या और जो चीजें हैं, वो किधर गई? वो तो बिक गई मार्केट में। वो तो जो बुचर था या स्लॉटर हाउस वाला था, उसने खुद ही बेच ली, उसके पैसे ले लिए। भाई वो तो कुर्बानी का जानवर था, उसकी खाल के तो पैसे नहीं लेने थे। अगर लिए हैं तो किसी दारुल उलूम में, किसी यतीम खाने में, किसी मदरसे में पहुंचाएं, जो हकदार हैं उनको दें। तो ये गड़बड़ होगी। हम लोग अपने बुचर से, मीट शॉप वालों से नहीं पूछते कि भाई मेरे इस कुर्बानी के जानवर की खाल किधर है, अगर कहीं बेची है तो उसके पैसे साथ दो मुझे, और अगर सिरी पाए हैं तो वो मुझे दो, मैं ताकि किसी को दूं, कोई पकाए, कोई खाए उसको। और भी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हम कलेजी है, फेफड़ा है, ये चीजें सारी जो खाने पीने की चीजें हैं, वो इस्तेमाल में एक एक चीज का पूछें उसको, बुचर को। तो ये छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आप यूरोप में हों, आप अमेरिका, कनाडा, जापान में बैठे हों, आप चाहे मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट में बैठे हों, आप चाहे अरब में बैठे हों, मिडिल ईस्ट में हों, खुदारा अपनी कुर्बानी को
बड़ी एहतियात से हर चीज को फिगर आउट करके, काउंट करके, तो खुद अपनी सवाबदीद पर, अपनी जिम्मेदारी पर कुर्बानी को ज़िबा किया करें और कुर्बान किया करें। ऐसे ही दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ देनी लापरवाही करते हुए। अगर मैंने पैसे दिए और गोश्त खा लिया, कुर्बानी ना हुई, तो फिर तो ऐसे ही है जैसे मैंने किसी मीट शॉप से गोश्त खरीद लिया और इस्तेमाल कर लिया, उसमें से कुछ बांट भी दिया। नहीं, कुर्बानी को जिस नेक नियति और मकसद के लिए किया जा रहा है, वो फुलफिल होनी चाहिए डेस्टिनी। इसलिए बहुत एहतियात करें। ये मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं। आप जब इसको फिगर आउट करेंगे, आप जब इसको फुलफिल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको खुद भी समझ आएगी कि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो देखी भाली यानी जरूरी है। तो अपनी कुर्बानी को जरूर बर जरूर सही तरीके से कुर्बान करें। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में एक और इशू है, ये भी आइडेंटिफाई कर दूं। हमारे लोग वहां पे रिश्तेदारों में तो बांट देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मीट अपने फ्रिजों में और फ्रीजर में भर लेते हैं। आई एम सॉरी टू से, अल्लाह पाक रहने वाला मामला। भाई जरूर रखें आप अपना हिस्सा फ्रिज में, फ्रीजर में, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई मैंने कुर्बानी का जानवर तो किया लेकिन वो सारे के सारे मैंने फ्रिज में डाल लिया। ऐसा ना करें। अल्लाह की राह में जरूर दें, गरीबों मस्कीनों को जरूर दें। वहां पे ये बकरे का गोश्त या दुम्बे का गोश्त बहुत महंगा है। बहुत सारे लोग हैं गरीब जो पूरा पूरा साल जिनको बकरे का या दुम्बे का गोश्त नसीब नहीं होता। लिहाजा खुदारा अल्लाह की रजा और खुशी के लिए आप अपनी कुर्बानी के जानवर में से बांटें। गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों को देखें। आपके रिश्तेदारों में, अजीजों में कौन है गरीब, कौन है यतीम, कौन है मस्कीन, कौन है बेवा, और फिर उस तक पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। फ्रिज में भी रखें, जो आपका हिस्सा है चलें वो फ्रिज में रखें, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। सारा तो नहीं पकाना ना आपने, चले जो भी 2-3 पोर्शन है वो आप अपने फ्रिज में रख लें, लेकिन सारा ना करें। कुर्बानी को कुर्बानी रहने दें। अल्लाह अल्लाह। कुर्बानी एक जज्बा है दर हकीकत, इसार का, कुर्बानी का एक जज्बा, एक स्पिरिट है इसमें। और अगर हम उस स्पिरिट को कायम नहीं रखेंगे तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ भी पैसे दिए, गोश्त लिया, बस ठीक है, गोश्त खा रहे हैं भी हम पैसे खर्च करके, लेकिन वो कुर्बानी वाली जो डेस्टिनी है वो फुलफिल नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कि आपके अंदर वो कुर्बानी की फीलिंग हो कि हाँ भाई मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा और खुशी के लिए कर रहा हूँ, हजूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, और अपने आका व मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर। ये हजूर की भी सुन्नत है। कुछ लोग सोचेंगे भाई नहीं ये तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हजूर की सुन्नत कैसे होगी? भाई हजूर की सुन्नत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया वो हमारे लिए सुन्नत है। तो आपने तो कुर्बानी की है, इसलिए वो हमारे लिए भी सुन्नत है। आपने अपने जद्दे अमजद हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की और हमारे लिए वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुन्नत बन गई। तो कुर्बानी जरूर करें, जज्बे के साथ, इसार के साथ। और जब कुर्बानी करें तो नियत हो, इंटेंशन हो, मैं अपने माल की कुर्बानी कर रहा हूँ, जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ, मैं अपने नफ्स को कुर्बान कर रहा हूँ, मैं अपने जितनी भी इल्लतें और बुराइयां हैं मेरे अंदर, मैं वो सारी कुर्बान कर रहा हूँ इस कुर्बानी के साथ। सब कुछ, तमाम बुराइयां, बुरे रास्ते। अगर कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं होगा तो आप मुझे ये बताएं, मैं अपने बहन भाइयों का हक कैसे दूंगा? मेरे अंदर तो कुर्बानी का जज्बा ही नहीं है।
میں کسی یتیم کا مجھ پر حق بنتا ہو میں کیسے دوں گا، کسی بیوہ کا مجھ پر حق نکلتا ہو میں کیسے دوں گا، میرے اندر تو قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنی اولادوں کو آگے کیسے ان کے حقوق دوں گا، اپنی بیوی کو اس کا حق کیسے دوں گا، میرے اندر تو قربانی کا جذبہ ہی نہیں۔ یہ ہر سال جو قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ وہی عمل، وہی میموری، وہی سوچ ریفریش کی جاتی ہے آپ کے اندر کہ بھئی قربانی کا جذبہ پیدا کرنا اپنے اندر، کبھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، کبھی اپنے مال کو دین پر خرچ کرنا، کبھی اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، ان پر قربان کر دینا، کبھی اپنے مال کو اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے سبلنگ پر قربان کرنا، کبھی اپنی جائیداد میں سے جس کا حصہ بنتا ہو اس کو دینا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ یہ جو جذبہ ہے قربانی کا، یہ جو جذبہ ہے دے دینے کا، اس کو قائم کرنا ہے، اس اسپرٹ کو قائم کرنا ہے ہمیں۔ میں نے یتیم کا بھی حق مارا، بیوہ کا بھی حق مارا، بہن بھائیوں کا بھی کھا گیا، میرے اندر تو قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ میرے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ میرے 4 بھائی ہیں، اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے الحمدللہ، نہیں بھی مجھے پراپرٹی میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ 4 میرے بہن بھائی ہیں، انہی میں بس بانٹ دو، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا الحمدللہ، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ یہ قربانی ہے، یہ جذبہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو قربانی کرنا ہے یہ صرف اور صرف کوئی بکرا، کوئی دمبا، کوئی گائے، کوئی اونٹ ذبح کرنا نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے ہر سال اگر وہ سرکشی نہ کرے۔ قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اس کو ریفریش کرتے رہنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ میں نے اپنے مرشدوں کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سخت بات ہے لیکن بڑی میننگ فل، بڑا اس میں سبق ہے۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ یہ جو یورپ میں ادھر ادھر امریکہ کینیڈا میں آ گئے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا ملک چھوڑا۔ غور کیجئے گا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کی خاطر، ترقی کی خاطر، ظاہر بات ہے ترقی ہوگی، پیسہ، خوشحالی ہوگی، خیر و برکت ہوگی، مال ہوگا، اچھی پراپرٹی، اچھی لائف سٹائل ہوگا، ہم نے اس چیز کی خاطر اپنا ملک چھوڑا، اپنے بہن بھائی چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا، خوشیاں چھوڑ دی، نہ ہم کسی کی خوشی میں، نہ کسی کی غمی میں، پردیس میں بیٹھے ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں، کیا ہم وہ پیسہ، وہ مال جس کی خاطر ہم سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آئے، وہ پیسہ، وہ مال ہم چھوڑیں گے؟ اب وہ ہم قربان کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم نے تو ماں باپ قربان کر دیے اس پیسے کی خاطر، ہم نے تو بہن بھائی قربان کر دیے، اپنا ٹریڈیشن، اپنا کلچر، اپنے بچپن کے دوست ساتھی، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ سب قربان کر دیا ہم نے۔ اب ہم جس پیسے کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کیا، وہ پیسہ ہم چھوڑیں گے؟ وہ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے؟ اس پیسے کا کوئی بکرا، کوئی جانور لے کے ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ ایک برا عمل، فطری عمل ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، انجانے سے ہو گیا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہو گیا، لیکن ہو گیا۔ اب ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ میں نے اپنا مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ میں نے اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ میں نے اپنا مال اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربان کر دینا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے۔ میں نے اپنے مال میں سے یتیموں، مسکینوں کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ کسی کی سرپرستی کرنی ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کسی کا سہارا بننا ہے، کسی کے سر پر چھت قائم کرنی ہے، پھر یہ ہماری غلطی کا مدافع ہوگا۔ خدارا اپنے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ایثار کا جذبہ پیدا کریں، تاکہ ہم مال کو عزیز نہ رکھیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ان کو عزیز رکھیں، مال کو عزیز نہیں رکھنا۔
माल को अजीज नहीं रखना। ये माल अल्लाह की राह में खर्च करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा, इसमें खैर भी आएगी, इसमें बरकत भी आएगी, फलाह भी आएगी, तरक्की भी आएगी। इसको आप इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ये अजाब बन जाएगा, ये अजाब बन जाएगा, ये आजमाइश बन जाएगा, ये आपकी औलादों को, आने वाली नस्लों को खराब कर देगा। खुदारा अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें, कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, और हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप अपनी जो कुर्बानी है सही तरीके से दे रहे हैं और वो सही जगह पर पहुंच रही है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो जिक्र अज़कार करते रहे सब कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी आज़मीन हज तेरी बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने हज अदा किया, अल्लाह मबरूर फरमा, कबूल व मकबूल फरमा। जिन्होंने कुर्बानी की या कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, सबकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह, हम सब के लिए ये बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह, हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें कुर्बानी का सही जो जज्बा है वो अता फरमा, हमें इसार और कुर्बानी का जज्बा अता फरमा। अल्लाह, हमें तेरी बारगाह में अपने आप को भी कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा, अपने नफ्स को, अपने माल को, अपनी हर चीज तेरी बारगाह में कुर्बान कर दे, ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह, हमें भी कबूल फरमा ले, हमारी औलादों नस्लों को भी कबूल फरमा ले, हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा दे, कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशें माफ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने में किए हुए आड़े टेढ़े बोल माफ फरमा दे। या अल्लाह, किसी की दिल आजारी हुई हो हमारी किसी बात से, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह, हमें एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, एक ऐसा मुसलमान, एक ऐसा बंदा जिस पर तू राजी हो जाए, जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना दे, जैसा तेरे महबूब को पसंद हो अल्लाह वैसा हमें बना दे। अल्लाह, हम तेरे और तेरे महबूब के बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदे बनकर जीना चाहते हैं, हम पर अपना करम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, खुसूसन हम अपनी औलादों के लिए दुआ गो हैं, हमारी औलादों को या अल्लाह अपनी और अपने महबूब की जो शरीयत और तरीकत वाली राह है, जो पसंदीदा दीन वाली राह है, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, हमारे बच्चों को दुनिया की बेराह रवी में खो जाने से बचा लेना। या अल्लाह, हमारे बच्चों को बुरी आदतों, बुरी इल्लतों, बुरे लोगों से हम उन्हें बचाना। या रब्बुल आलमीन, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा, उनके नसीब जोड़ मुकद्दर अच्छे फरमा। अल्लाह, उन्हें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए सदकाए जारिया बना दे, हमारी औलादों को हमारे लिए हमारी आंखों की ठंडक बना दे। जितने भी आज़मीन हज आए सब की हाजिरी कबूल फरमा, सबका हज मबरूर फरमा, सबकी कुर्बानियां कबूल फरमा, सबके जिक्र अज़कार कबूल फरमा, सबकी नमाजें, कुरान की तलावत, हर नेक अमल कबूल फरमा, सदकात खैरात कबूल फरमा, इल्तिजाएं कबूल फरमा, तौबा सच्ची करके कबूल फरमा, दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह, हम भी तेरी बारगाह में हाजिर हैं, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों,
सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इमलाक की इज्जतों शर्मों की खैर फरमा, मुसलमानों पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा, बिल खसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह अपना रहम अता फरमा, अपना करम अता फरमा, मुसलमान मुल्कों इलाकों सरहदों पर अपना करम अता फरमा, खसूसन बिल खसूस जो अफगानिस्तान में जलजला आया है, या अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी मदद फरमा दे। जो बांग्लादेश में फ्लड आ गया है, या अल्लाह अपने करम से अपने खजाना गैब से वहां के रहने वालों की मदद फरमा दे। या अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमान मुल्कों पर जुल्म तोड़े जा रहे हैं, कुफ्फार को उनके नापाक इरादों में नाकाम फरमा दे, अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की खैर फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब को दीने इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा, हमें इनाम याफ्ता लोगों वाला रास्ता अता फरमा। या रब्बुल आलमीन नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, सदा जिक्र व फिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बीमार हैं अल्लाह अपने खजाना गैब से उनको शिफाएं अता फरमा। ज़ाहरी बातनी जिस्मानी रूहानी कैसी ही कोई बीमारी क्यों ना हो, अल्लाह अपने करम से शिफा बख्श दे, अपने महबूब के सदके वसीले से शिफा बख्श दे। या अल्लाह मेरे जितने भी साथी मोहब्बत वाले हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, प्यार करते हैं, खिदमत करते हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा, सबको रूहानियत में से पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा, अपना कुर्ब अता फरमा, अपने महबूब का इश्क और मोहब्बत अता फरमा, औलिया उज़्ज़ाम की खास निगाह अनायत और शफकतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जहां जहां भी महफिल जिक्र सजती हैं उन घरों को आबाद और शाद फरमा, उन इलाकों को आबाद और शाद फरमा, जो ये महफिल सजाते हैं उनके दिलों को आबाद फरमा। या अल्लाह उनके माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। जिसने भी दामे धर्मे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से दीन की खिदमत की है, सबको सब की खिदमत को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे जितने भी आबाओ अजदाद, अजीज़ो अकरबा, रिश्तेदार, हमारी फैमिली से, हमारे ससुराल, ननियाल, ददियाल फैमिली से जितने भी मर्द औरतें बच्चे वफात पा चुके, शहीद हो चुके, दुनिया से जा चुके हैं, सबके लिए दुआ गो हैं, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो भी सोगवार लवाहकीन रह गए अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा, इस सब्र के करने पर उन्हें दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा, हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा, जो चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा। या रब्बुल आलमीन आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके आस्थानों की मुरीदीन की खुलफा की खैर फरमा, हुजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा, इनकी फीज़ो बरक़ात से सदा मुस्तफ़ीद होते रहने की तौफीक अता फरमा। जो साथी मेरे पास मोहब्बत से चल के आ गए, या अल्लाह इनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। मेरी तमाम दुआएं मोहब्बत भरी जो तेरी बारगाह में आजिज़ी से मांगी, या अल्लाह वो सारी दुआएं इनके हक में भी कबूल मकबूल। अल्लाह जो भी आज तक मांगा अता फरमा दे, जो दिलों में रह गया वो भी अता फरमा दे, जो लबों पर आ गया वो भी अता फरमा दे। हमने अपनी औकात के मुताबिक मांगा, तो अपनी शान के लायक अता फरमा। तेरी शान बहुत अरफा व आला है। अल्लाह अपने करम से, अपने महबूब के सदके वसीले से अता फरमा, झोलियां खुशियों से भर दे, हमारे घरों में खैर व बरकत, तस्लीम व रजा, खुशहाली, खैर व बरकत हो, ऐसा करम। जिनके काम कारोबार हैं लेकिन
خوشحال نہیں ہے وہ، یا اللہ ان کے کاروبار میں، کام میں خیر برکت ترقی عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے۔ جو اپنی اولادیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سدا اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو پھر میری طرف سے ایک بار پھر عید کی خوشیاں مبارک ہوں، عید مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی عبادات کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے ایثار و قربانی کے جذبے کو، اور جو لوگ حج پر گئے اللہ ان کے سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔